जी, नेवर मिस अ ट्यूसडे डिनर। In January 2023, entrepreneur Mark Randolph, the co founder and first CEO of the streaming pioneer Netflix, posted a photo of a short handwritten note with the caption, My Definition of Success. In it, Randolph described a weekly non negotiable ritual that he had maintained throughout his ultra successful technology career. For over 30 years, I had a hard cutoff on Tuesdays. Rain or shine, I left at exactly 5 p.m. and spent the evening with my wife. We would go to a movie, have dinner, or just go window shopping downtown together. ये हमने शायद कहीं पे तो ये मेंशन है आइदर कंपाउंडिंग इफेक्ट में या कहीं पे ये इसका दैट आई वुड टेक दैट डे ऑफ उसने कहीं पे मेंशन किया है कोई और ऑथर ने फॉर दिस गाय. We would go to a movie, have dinner, or just go window shopping downtown together. I spoke to Randolph a few months later and asked him about the origin of the Tuesday dinner rule and its importance to his life. Early in his career, he told me he was working 8-hour weeks, completely immersed in the startup world. When his relationship began to suffer, Randolph said, I realized that I was the problem because I was expecting her to take the leftovers of what I was able to offer, and that felt wrong to me. But rather than ignoring the problem or expecting it to solve itself, he took matters into his own hands. Everything comes from what you put first, he said. I needed to reprioritize my allocation of time. The Tuesday dinner became a non negotiable ritual, even as he was starting one of the most transformative technology companies of the modern era. Randolph stuck to it. Nothing got in the way of that. If you had something to say to me on Tuesday afternoon at 4:35, you had better say it on the way to parking lot. If there was a crisis, we were going to wrap it up by 5. But the Tuesday dinner rule wasn't about the dinner, not really. It was all about symbolism, ripple effects into every other area of my life. The ritual illustrates to me and everyone around me, my family, my partners, my employees, my friends, what my priorities are. It was a small, consistent weekly display of respect and admiration for what he valued most in life. A strong signal through action, not words. His wife see his commitment to their relationship and love, which strengthens her own commitment to the bond. His children see his dedication to their mother and the family unit, which makes them secure in their understanding of their role in his world. His employees see his priorities and boundaries with his family and are encouraged to set their own, which makes them more loyal and focused during the hours at work. One action, a weekly Tuesday evening dinner with ripple effects that extend well beyond. I resolved a long time ago to not be one of those entrepreneurs on their seventh startup and their seventh wife. In fact, the thing I am most proud of in my life is not the companies I started, it is the fact that I was able to start them while staying married to the same woman. Having my kids grow up knowing me, and best as I can tell, liking me and being able to spend time pursuing the other passions in my life. That's my definition of success. Most important, that idea, I will never miss a Tuesday dinner, is an identity defining statement for Mark Randolph. It is clear, controllable, and serves as a reminder to self of the type of person he is. When a new situation or opportunity arises, good or bad, he can ask himself, what would the type of person who never misses a Tuesday dinner do in this situation? How would he handle it? This is where the true power lies, in the connection of a single elegant statement to how your ideal self shows up in the world. तो इस तरह से हम सभी अगर देखें तो हमारा आइडेंटिटी डिफाइनिंग स्टेटमेंट क्या है, या हमारा इस तरह का कोई वीकली मंथली या डेली रिचुअल क्या है। सबके होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन लेट अस आइडेंटिफाई एंड शेयर। जैसे हमारा एक फोकस सेशन का रिचुअल है 1 PM वाला। तो इफ़ आई एम एट होम तो हम मिलते ही हैं, चाहे हम रीडिंग करें चाहे फोकस सेशन करें, लेकिन एक रिचुअल है ये। तो ऐसे क्या क्या सबकी लाइफ में और हो सकता है।
मुझे रीडिंग का भी रिचुअल बन गया है, क्योंकि आज क्या हुआ, मैं स्विमिंग से आई वापस और एकदम से ज्वाइन कर लिया। तो मुझे लगा रीडिंग चालू, पर दो ही चंद दिखे भी। फिर बाद में मैंने चेक किया, तो वो फोकस सेशन था और अभी का रीडिंग कर दिया आपने। जी, राइट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आइडेंटिटी डिफाइनिंग स्टेटमेंट। जैसे कई लोगों का होता है कि जैसे कुछ लोग वैष्णो देवी जाते हैं, तो उनका फिक्स है कि साल में 2 बार तो जाना ही है। हम्म। तो ये उनका एक, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी कंपनी में काम हो, चाहे घर पे कितनी भी सारी चीज़ें हों, बच्चों के एग्ज़ाम हो, हेल्थ भी ऊपर नीचे हो, लेकिन उनका है कि उनको हाजिरी लगानी है 2 बार जाके, या जैसा भी उनका है। तो इस तरह के रिचुअल्स लोग बनाते हैं और वो उनको हेल्प करते हैं। I will never miss a Tuesday dinner is Mark Randolph's life razor, his single point of focus that allows him to cut through the noise, maintain perspective and balance, make decisions in line with his core identity, and create positive ripple effects throughout his world. अच्छा, तो मतलब this can be also called as life razor, हिप्नोटिक लैंग्वेज है ये, है ना? cutting off other things. यस। ये भी वैसे टेल इवेंट जैसा एक अच्छा वर्ड मिल गया. हम्म। What is your life razor? Without one, you are leaving life to chance, like a mountain climber caught in a blizzard. You will become blinded by it, lose all points of reference, and wander aimlessly, praying for the storm to subside. With one, you'll see clearly. The storms won't be any less turbulent, but you will be well equipped to navigate through to the other side. Mark Randolph found his life razor. Now let's help you find yours. तो बिफोर फाइंडिंग अ वर्ड्स, लेट अस कॉन्टेम्पलेट के क्या लाइफ रिजल्ट्स अभी हमारे पास हैं, एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स क्या हैं। भले हो सकता है शार्प एनफ ना हो, उनके ऊपर रस्ट लग गई हो। Hmm. तो क्या हम ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जिससे कि हम क्लटर को हटा सकें? जैसे एक till 8 at least I don't touch the phone. कुछ भी चाहे वो मैसेजेस हो कुछ भी हो, बट ऑफ लेट आई थिंक वो मिस हो रहा है. तो हम्म। 8 8:30 आई डोंट इवन लुक एट माय फोन ऑन दूसरे के व्हाट्सएप में कुछ आया है तो, या फिर अपना मेल चेक करना हुआ, या फिर यूट्यूब में कुछ सुनना हुआ. वो सब बेसिकली यही चीजें होती है. तो आई थिंक दैट इज वन. यस। जैसे रिसेंटली आई वाज ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क 9 to 5 फॉर ए वेरी 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 गुड पैकेज। लेकिन सिंपली 9 to 5 तो करना ही नहीं है। तो ये क्लियर रेजर है, चाहे आप कुछ भी करो, कितना भी दो, कहीं भी रखो, ये तो करना ही नहीं है। अपने टाइम पे अपना ही कंट्रोल चाहिए, हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो ये भी हो गया, ऐसे काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो किसी का हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, किसी का टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, किसी का फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में, कि भाई देश छोड़ के तो नहीं जाना है, जो करेंगे देश में करेंगे, या जो करेंगे फैमिली के साथ रह के करेंगे। तो ये हम्म. बोल सकते हैं। राहुल जी, मैंने मिस कर दिया एक्चुअली, मेरा एक कॉल आ गया। लाइफ फ्रेजर मिस कर दिया। अगर थोड़ा सा मेरे को एक जस्ट बता सकते हो तो वो बेस्ट रहेगा। ओके, लाइफ रेजर मीन्स एक ऐसा क्राइटेरिया जिससे आप सारे क्लटर को हटा सकते हो। वाइल एक तरह से, मतलब जैसे हम एनएलपी में कहते हैं ना, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, कोर वैल्यूज़ क्या हैं। तो वैल्यूज़ हमारी क्लियर होती हैं तो क्लटर को हम हटा सकते हैं कि ये हमें करना है, ये हमें नहीं करना है। शेविंग ऑफ अदर थिंग्स, मतलब इसमें जो बता रहे हैं वो, तो life is razor is a savior and shaver, SHAVER, of the unnecessary clutter things. हाँ, या जैसे वन थिंग बुक है, तो वन थिंग बुक में की जो स्पिरिट है वो यही है, या एसेंशियलिस्ट होने की जो स्पिरिट है वो भी यही है, और मिनिमलिस्ट होने की स्पिरिट है वो भी यही है। एसेंशियलिस्ट कौन है? जो बाकी सारी चीज़ों को हटाते जा रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मिनिमलिस्ट भी वही है। या लेस इज मोर का जो आजकल कॉन्सेप्ट है, तो वो एक तरह से यही है कि
कुछ भी पेरिफेरल वाली चीज़ें नहीं चाहिए, कोर चीज़ पे चाहिए, थोड़ा ही काम चीज़ें करनी है लेकिन कोर में रहना है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम वी आर ब्लाइंडेड बाय अदर थिंग्स, वी लूज ऑल पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड वी वंडर एमलेसली। तो बहुत ही अच्छी मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, और हम्म एक तरह से ये क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बहुत डायरेक्ट से मेटाफोर भी नहीं है, एक स्टोरी बना के फिर कहाँ का चीज़ें कहाँ पे फिट करके बढ़िया है ये। और वैसे भी डायरेक्ट मेटाफर होता तो शायद वो इतना इफेक्ट भी नहीं करता, इनडायरेक्ट कमांड है ये। तो वो है। हम्म एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा बोला राहुल सर आपने। रेजर मतलब क्या, वो वन थिंग का जो बोल रहे हो, वो एक चीज पे फोकस करना वैसा। हाँ, रेजर मीन्स टू डिक्लेटर, टू कट, टू एलिमिनेट। इवन जैसे नहीं कर पाते तो कैसे करने का उस पे? मेरे पास भी ये मेरा ही स्टोरी ऐसा लग रहा है, बहुत सारी चीजें लेके बैठी हूँ और एक भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। उसी के बारे में वो बताने वाले हैं, शार्पनिंग योर लाइफ रेजर कैसे करना है। राइट। बाकी तो मुझे लगता है काफ़ी इजी हो जाता है जब हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं। सो नॉट टू डू लिस्ट हमारे पास क्लियर रहती है कि क्या हमें नहीं करना है। या फिर हम ये पूछें कि कोई भी चीज़ हमें क्यों करनी है, जैसे 5 वाई वाली बात जो आती है, क्यों करना है। अदरवाइज क्या होता है, कई सारी चीज़ें हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम कुछ कुछ इन्फ्लुएंस में है कि ये ट्रेंड चल रहा है आजकल सोसाइटी में, ये हमारी इंडस्ट्री का ट्रेंड है, सब लोग ये कर रहे हैं, ये करना चाहिए, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो हम अंडरस्टैंडिंग के बिना कई बार सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रेंड में है, तो फिर वो उससे मुश्किल आ जाती है। तो कैसे इसे हम शार्पन करें इसको, आगे समझते हैं।